Uh, hello everyone. Good evening. This side Manisha. I'm going to tell you how to run your event management business. Right. First, you have to understand what is event. Event are celebration that's provide an opportunity to meet and share happy moments with our family, colleagues, relatives, friends, etc. And now come to the what is event management. Event management is the process of analyzing, planning, and marketing, producing a selecting an event. And many people think that event management is nothing, just create a find a venue, get some drink and food, and start a event. But unfortunately, like many things that seem simple, it's not easy. Creating a successful event is not a easy. You have required lots of hard work and desired range of skills to start a event, right? You want a lot of hard work and knowledge for a successful event. Now come to the main point. What are the types of event? If you are start your business as an event management, you have to knowledge about what are the kind of business in the market right now. So now come to the types of events type. First one is corporate event. In corporate events, we include seminars, conference, trade shows, workshops. These are the corporate events. If you are thinking about to start a event business in your professional ways, so you have to start as a corporate event. Second one is social event. Social events like parties, weddings, reunions, birthday parties, baby shower, these are the type of social events. If you are thinking to about, you like heavy music or lighting, so you have to go in social events. And last one is charity event, to raise money from the non profit organization, is kind of charity event. आपने सुना होगा सलमान सर का being human. This is the kind of charity event, right? Now come to the second point, why. Now if someone ask him to कि मैं कब start कर सकता हूँ event management का स्टेट, at any time you start your business as a event manager at any time. बस आपको knowledge होनी चाहिए and आप अपना event management का business कभी भी start कर सकते हैं. Now come to the second point, why. आप why to run your event management as a business. अगर मुझसे पूछेगा कोई तो क्यों करना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगी to earn profit whichever money I'm earning from my job. जितनी भी मनी मैं एक साल के अंदर अपनी सैलरी या जॉब से ले रही हूँ, उतनी अगर मुझे इवेंट मैनेजमेंट से एक साल के अंदर उतनी मुझे सैलरी या इनकम मुझे हो रही है, दैट्स व्हाई आई एम रनिंग इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस. मेरा फर्स्ट गोल ये है, अगर मैं अपना इवेंट मैनेजमेंट को एज अ बिजनेस चूज करती हूँ, तो जितनी भी सैलरी मैं किसी जॉब से एक साल में अपनी अर्न कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही वो उतनी सैलरी मुझे उस इवेंट मैनेजमेंट के बिजनेस से मिल जाए, राइट. नाउ कम टू द, अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है कि मुझे कितनी सैलरी, क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, आपको आंसर नहीं मिल रहा है, सो यू हैव टू डू वन थिंग. टेक योर कॉपी एंड पेन एंड स्टार्ट राइटिंग डाउन व्हाई आई एम चूजिंग एन ऑप्शन कैरियर एज अ इवेंट मैनेजमेंट प्लानिंग. आपको खुद आंसर मिल जाएगा. सो आप, मेरा गोल तो यही है कि अपना फर्स्ट गोल सेट करो कि एक साल के अंदर मुझे इससे इतनी इनकम हो गई. अगर एक साल के अंदर तक आपका इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस मार्केट में सरवाइव कर रहा है, तो वो आगे अच्छे से सस्टेन हो जाएगा. फर्स्ट आपको अपना जो बिजनेस है वो मार्केट में सस्टेन करना है, डेवलप करना है कि वो उतना हो जाए, देन अपॉर्चुनिटी ग्रोथ मिल जाएगी. एंड इवेंट मैनेजमेंट ऐसा बिजनेस मार्केट है, अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने एक बार उसमें आप सेट हो गए, तो आपको इजीली और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उसमें मिलती जाएगी. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट वन इज कि आप, if you thinking to start a event management business, you have to break two myths. Myths, first one is production and second is certificate. As many people think, I am having a no production, I can't start a event management business. That's a wrong. Production is a small part of event management, right? Before a production, there are many things in the event management. Marketing, first you have to do about your product marketing, then you have to find a client, then in front of client you have to present a presentation, communication, negotiable, and after these all things you have to find a closer with client, then you have to deal with vendors, you want to create a team. In the last step is execute. When you are done with all things, that in the last you will find a production. So production is nothing, is the last step of business, right? And you have to develop yourself in any
every field like marketing, presentation, negotiable, vendors, team. अगर आपको इन सब से डील करना आ गया तो आप इजीली सारे के सारे कर सकते हैं. अगर आपको केवल प्रोडक्शन की नॉलेज है, आपके पास केवल प्रोडक्शन है, अगर क्लाइंट ही नहीं है तो आप क्या करेंगे मार्केट में, राइट? तो आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए. Next one is certificate. Many people think if I am not having a certificate, I am not able to find any job. I'm not able to survive in the market. That is a myth. Certificate is nothing. It's just a piece of a paper that matters. Only one thing that matters is your experience. अगर आपके पास experience है business management का, तो आप market में easily सस्टेन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट हैव योर बर्थ सर्टिफिकेट, यू आर नॉट काउंटेड एज अ डेड, राइट? अगर आपसे अगर बर्थ सर्टिफिकेट खो गया बट यू आर स्टिल देयर ना, आपके पास है ना, तो आप हो ना. तो इसी तरह से बिजनेस मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट है. अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बिग डील नहीं है. इफ यू आर डूइंग एनी मिस्टेक इन द इवेंट मैनेजमेंट, दैट्स जस्ट सर्टिफिकेट कैन नॉट जस्टिफाई योर मिस्टेक. अगर आपके ने बहुत अच्छा कर दिया तो आपको कोई आके ये नहीं देखेगा अपना सर्टिफिकेट दिखाओ आपने कहाँ से लिया, दैट्स ओके. अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, इफ योर गेस्ट आर टॉकिंग अबाउट you and your vendors, if you're supporting your team, these all things your certificate. अगर आपकी सब तारीफ कर रहे हैं, you in your market you are high rating, और आपके सारे वेंडर्स हैं, अब अच्छा कर रहे हैं, टीम अच्छी सपोर्टिव है, तो यही आपका काइंड ऑफ सर्टिफिकेट है, राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बिजनेस पार्टनर. आपको सबसे मेन थिंग है, आपका बिजनेस पार्टनर कौन होना चाहिए, आपको चूज कैसा करना है अपना बिजनेस पार्टनर, राइट? अगर आपका बिजनेस पार्टनर अच्छा है तो कैसे चूज करें? ये नहीं कि मेरा दोस्त है, बहुत साल से मेरे साथ रह रहा है, मुझे पसंद है, मेरा बिजनेस पार्टनर हो गया. नो, बिजनेस पार्टनर हमेशा आपका ऐसा होना चाहिए जो आपके अपोजिट क्वालिटीज रखता हो, जो आपके कंपोनेंट हो, राइट? अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर ऐसा है जो आपका बहुत टाइम से दोस्त है, चलो हम इवेंट स्टार्ट करते हैं, मेरा बिजनेस पार्टनर हो गया, नहीं. अगर आप किसी चीज को, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडिया आप क्रिएटिव है, तो आपका बिजनेस पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो आपके पास क्लाइंट लाके दे, उसे अच्छे से प्रेजेंट कर सके. एक क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए तो अदर क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, तभी सारी क्वालिटी मिलकर कोई बिजनेस को आगे ले जा सकती है, राइट? और अगर आपके पास, आप किसी को चीज को अच्छे प्रेजेंट करने में है, तो आपका बिजनेस पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो प्रोडक्शन में अच्छा हो, तभी आपकी सारी क्वालिटीज बन सकती हैं. ओके, नाउ स्टार्ट इनफॉर्मली. अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका बिजनेस स्टार्टिंग में इनफॉर्मली होना चाहिए. स्टार्टिंग में आप ये नहीं सोच सकते कि यही मेरा सेटअप है, पूरी लाइफ का मुझे गोल मिल गया एज अ कैरियर, यही मेरा बिजनेस पार्टनर है, मुझे यही करना है, मैंने जाकर पूरी लीगल अथॉरिटीज कर ली कि हाँ मेरा बिजनेस यही है. दैट इज अ रॉन्ग. आपको नहीं पता आपका बिजनेस पार्टनर कैसा है, आपको नहीं पता आपने जो थीम चूज करी है, इवेंट के टाइप चूज किया है, वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं. उसके बाद आप 6 महीने बाद चेंज करते हैं तो दैट विल बी लिटिल टाइम लेंगी, थोड़ा प्रॉब्लम भी आएगी, राइट? तो आपको उससे पहले आप मार्केट में 6 महीने उसको चला के देखिए, सस्टेन करिए. अगर आप मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी ले पा रहे हैं और मार्केट में अच्छे से ग्रोथ कर पा रहे हैं, देन यू गो फॉर ए और लीगल अथॉरिटीज. ओके, लीगल वर्क, पेपर वर्क, देन आप उसको फॉर्मली कर सकते हैं, वेबसाइट और सब कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह जाके कंपनी में करा सकते हैं. बट आई हैव टू सजेस्ट फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट इनफॉर्मली. नेक्स्ट इज फोकस ऑन द ब्रांड. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द इवेंट मैनेजमेंट. नाउ डेज आप कोई क्लाइंट आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का टाइम है, आप कोई भी क्लाइंट इजीली फाइंड कर सकते हैं. क्लाइंट फाइंड करना इतना हार्ड नहीं है, बट आपको ये रहना चाहिए कि मेरा जो काम है, मेरी ब्रांड है, वो अच्छे से नोन हो. आप इतना अच्छा काम कीजिए कि हर कोई आपको पहले से ही जानता हो, आप मार्केट में वैसे ही फेमस हो जाए, राइट? तो फोकस ऑन द ब्रांड. अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है तो आपको वो ये कहना चाहिए कि हाँ मैंने इसका काम देखा हुआ है, शी और ही इज द गुड वन, ही अच्छा प्लानर है, अच्छे से प्लान करते हैं. तो मार्केट में काम आपका ऐसा होना चाहिए कि आपके पास अगर कोई भी आए तो आपको पहले से नोन हो. तो मेन फोकस ऑन योर ब्रांड. आप अपने काम पे फोकस करो, आपके वेंडर्स आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी टीम आपके बारे में क्या बोल रही है, आपको अच्छा सा अपने खुद को मार्केट वैल्यू बनानी है. तो नाउ डेज पर्सनल ब्रांडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट. आपको खुद की ब्रांडिंग बनानी है, राइट? नेक्स्ट वन इज
think of constant income. You have to think of constant income, like if आपका कोई इवेंट का बिजनेस स्टार्ट करा था, दिस इज अ क्वाइट इम्पॉसिबल, यू आर हैविंग अ 365 डेज एज अ इवेंट, ये पॉसिबल नहीं है। आपके पास हो सकता है कि एक दिन काम है, बाकी अब महीने आपको इवेंट नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे? सो इन इवेंट मैनेजमेंट देयर आर 40 बिजनेस मॉडल्स। आप उसको एज ए कंस्टेंट इनकम स्टार्टिंग से ही चूज कर सकते हैं कि अगर मेरे पास इवेंट काम नहीं आ रहा तो मैं एज ए बिजनेस और एज ए वर्क इसे चूज करूं, जिससे मुझे इनकम में प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड वन इज थिंक ऑफ कंस्टेंट ग्रोथ। मैंने देखा है मैनी पीपल थिंक आफ्टर 6 मंथ कि व्हाट आई डू, व्हाट आई कैन डू। तो ये आपको स्टार्टिंग से ही सोचना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वेडिंग प्लानर है तो आप अभी सब कुछ बाहर से आउटसोर्स कर रहे हैं, लाइक केटरिंग, फोटोग्राफर, सब बाहर से ले रहे हैं। अगर आप 6 महीने बाद, यू हैव टू थिंक अबाउट योर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रोथ। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ग्रोथ क्या है? आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, अपने नए आइडियाज कैसे ला सकते हैं। मे बी आप केटरिंग का काम खुद से स्टार्ट कर दें, राइट, और आप अपने जो फोटोग्राफर्स है वो आपके खुद के होने लगे। ऐसे आप अपने बिजनेस को वन स्टेप ग्रोथ कर सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज what are skills you required for the event planner? These are the basic skills. If you are going to start any business, these are the basic skills you have to build in yourself, right? This one is digital marketing, communication, networking, problem solving, and multitasking. If you are good in digital marketing, you can promote your business as well. If you are good in communication, you can bring more and more clients, and you are able to talk with vendors in a good terms. If you are good in networking, you can find you are a good team. If you are good problem solving, you can find any problem if you are having facing with the clients or vendors, you can find the solution very easy. You have to do many things at a one time. You can be a multitasking, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। सो ये सारे बेसिक स्किल्स है जो आपके अंदर होने ही चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, मेक द प्रॉफिट। अगर आप कोई भी बिजनेस आज के टाइम में स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपका मेन एम होता है कि हम उससे प्रॉफिट कैसे लें। तो यही आपका बिजनेस का भी एम होगा कि प्रॉफिट कैसे ले। प्रॉफिट आप ले लेंगे, बट टेक फाइनेंस सीरियसली। उस फाइनेंस को आपको सीरियसली लेना है। ये नहीं कि आपने 1 मंथ काम कर लिया है, आपके पास पैसा आ गया, देन यू आर गोइंग फॉर अ पार्टी, आपने सब खर्च कर दिया। नो, यू हैव टू आइडिया कि आपको वो पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। आपको बिजनेस और थोड़ा ग्रोथ करना है, या शेयर में इन्वेस्ट करना है, या इन फ्यूचर के लिए रखना है। तो फॉर स्टार्टिंग, फॉर 3 मंथ्स ऑफ स्टार्टिंग, यू हैव अ बेसिक आइडिया कि आपको वो पैसा कहाँ और किस तरह इन्वेस्ट करना है, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। और डोंट गेट बी पैनिक। हो सकता है इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर बिजनेस, आपको 3 मंथ में 1 क्लाइंट मिल रहा है, तो आप ये नहीं कि बहुत टाइम होगा क्लाइंट नहीं आ रहा तो मैं छोड़ दूं। ऐसा नहीं है, आपको नहीं छोड़ना। आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी आपका क्लाइंट 1 वीक के अंदर आ जाए, और हो सकता है 3 मंथ्स भी ले ले। दिस डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट और मार्केटिंग स्किल्स। सो आपको इसमें पैनिक नहीं होना है। नेक्स्ट इन पेशेंस और गोल। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस प्लान के अंदर, आपको पेशेंस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज यू हैव टू सेट योर गोल। हायर व्हेन यू आर रेडी। किसी भी लोगों को जब हायर करना, तब आप पूरा प्रॉपर हो जाए कि हाँ, मैं किसी पर्सन को आई एम एबल टू गिव सैलरी ऑफ एनी पर्सन फॉर 6 मंथ। अगर आप किसी पर्सन को 6 मंथ की सैलरी देने में एबल है, तभी उसको हायर करना। आप अपने बिजनेस प्लान सेटअप है कि हाँ, मुझे नीड है, मैं एक टीम क्रिएट कर सकता हूँ, बिजनेस में सस्टेनेबल हो रहा हूँ, तभी आप अपने टीम या किसी पर्सन को हायर करना कि इसको मैं 6 मंथ की सैलरी दे सकता हूँ। अदरवाइज किसी का सैलरी रोकना, दिस इज नॉट ए गुड इंप्रेशन इन द मार्केट एज अ ब्रांड, राइट। स्टेइंग अपडेट। आपको हमेशा अपडेट रहना चाहिए कि मार्केट में क्या न्यू न्यू टर्म आ रही है, ना क्यों न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या टेक्नोलॉजी, क्या थीम यूज कर रहे हैं। आप पेज लाइक करिए, उनके यूट्यूब चैनल्स देखिए, न्यूज रीड करिए रिगार्डिंग इवेंट, जिससे आपको पूरी नॉलेज होती रहे कि आप कैसे अपने बिजनेस को मार्केट में आगे ले जा सकते हैं। और ट्रस्ट मी, इफ यू आर इन अ इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस, यहाँ पर बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अगर आप बिना पैनिक हो स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, तो इन द मार्केट यू आर रिसीविंग सो मेनी अपॉर्चुनिटी। दिस इज द बेस्ट कैरियर अकॉर्डिंग टू मी। In the last, thank you everyone. If you like my seminar, then that's all. If you have any problem, if any question, you can ask me. Is there anyone? Excuse me, ma'am. Yes. Can I start my business without investment?
Yes, you can start your business without any investment. If you are a initial stage, you can go for an internship or as a freelancer, or if from gaining that knowledge or from earning, you can start your business. आपको इवेंट मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आप छोटे से इन्वेस्टमेंट से भी इसको स्टार्ट कर सकती हैं. बट फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट एज अ जॉब. आप कहीं जॉब करिए और वहां से एक्सपीरियंस लीजिए, देन यू गो फॉर द इंटर्नशिप और फ्रीलांसर. वहां से जो मनी आपको आना है तो उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, और नहीं तो वहां से आपको नॉलेज भी मिलेगी. तो आपको यहाँ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आप कम अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. एनी क्वेश्चन अदर? Yes. या Do I need certificate for business? no, you don't need any certificate for business. As I told you, there is a no need of certificate. You just have a good website or your experience or your business card. That's enough for your as a start for a business. You know, do not need so much certificate. You just need experience. Experience is your all certificate. Any question? Excuse me, ma'am, I have a question. My family does not support me, so what should I do? In initial basis your family, maybe your family would not support you, because वो लोग सोचते हैं कि जो इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस है वो जैसे 10-15 साल पहले होता है. तो आप उनसे सपोर्ट मत मांगिए, आप अपना वर्क कीजिए एंड शो देम. अगर आप उनको दिखाएंगे, आप देखेंगे कि 1 वीक और 1 मंथ और 1 ईयर के अंदर आप अपना काम करके दिखाएंगे कि आप कैसा कर रहे हैं विदाउट सम लिटिल मनी. अगर देखेंगे कि अर्निंग आ रही है और ये पर्सन भी अपना 100% हार्डवर्क दे रहा है, तो ये अपनी आपकी फैमिली खुद आपको सपोर्ट करने पड़े लगेगी कि हाँ दिस इज अ बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटी एज अ प्रीवियस. तो आप उनसे सपोर्ट मांगिए कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, साइड बाय साइड बिजनेस भी से स्टार्ट कर सकते हैं. फिर आपको खुद दिखेगा कि इसमें शो खुद देखेंगे कि हाँ इसमें अर्निंग ज्यादा है और ये अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी, तो अपने आपको आपको सपोर्ट करेंगे. राइट? एनी अदर? Ma'am, what type of business should I start? If for starting you have no idea about what is event, you can start your business. It depends on your personality. If you like formals or corporate events like seminar workshop, then you go for the corporate events. If you like lightings, loud music, or lighting or drinks, foods, expensive food drinks, then you go for a social events. If you like calm and peaceful, then you go for a charity events. It's depend on your personality, what kind of person you are. It's all depends on you. Any other question? No, ma'am. Thank you. If you like my seminar, that's a lot for me. In the last time, I'm going to thank everyone for giving your valuable time. Thank you, ma'am. Thank you.